معزز ناظرین، میں بریرہ اعجاز نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ آل انڈیا منی کونسل کرناٹکا کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ 2020 بروز ہفتہ 12 دسمبر بنگلور کے دارالسلام میں منعقد ہوئی، جس کی ایک رپورٹ پیش ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں نعمت اللہ جو قاری ہدایت اللہ صاحب کے فرزند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں کرتے ہوئے تمام مرحومین کے متعلقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ پچھلے 2 سال ملت اسلامیہ انڈیا کے لیے خصوصاً پوترے محمد عدنان جو نعت خواں ہیں، ان کی ایک نعت پڑھی جائے کہ میں گزارش کرتا ہوں عدنان کہ اس دوران ہمارے درمیان آل انڈیا منی کونسل کے کئی ممبرس بزرگان دین ایسے تھے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے۔ وہ تمام ہمارے یادوں میں بھی رہیں گے، ہمارے دعاؤں میں بھی رہیں گے۔ جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں، جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تمہید کے بغیر اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری زندگی میں 2 ایسے علماء ہیں جنہوں نے بڑا اثر چھوڑا ہے۔ ایک تو مرحوم ہو گئے مولانا مفتی اشرف علی صاحب، اور ایک کی ہم ان کی درازی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان کو سیاپوش کہتے ہیں، ہم ان کو مولانا مفتی رفاعی ندوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ان حضرات سے جو ہم نے ایک بات سیکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ خود پیش کر سکتے تھے لیکن وہ حجاب کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، وہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں بارہا یاد دلایا، اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں ہمارے جگہ پر جیسا ہم لوگ ہیں ویسا رہتا تھا، مگر اب وہ اس کا بعد آپ لوگوں کو سب معلوم ہے چیف منسٹر تھا ہومائن، لیکن اس نے مسلمان کے بہترین کام کیے ہیں، اور یہ ہوم منسٹر کی ٹوٹلی کنٹرول آف دی ہوم منسٹر سے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا مہم ہے۔ انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ عزم کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے۔ اہل ثروت تھے یا بڑے بڑے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پورے ملک کو خرید سکتے ہیں، ایسے حالات میں انہوں نے دیکھا۔ ہم نے ایک بڑے تاجر کے بارے میں دیکھا، بنگلور کے اندر ہی، وہ گلف کے اندر، سعودیہ کے اندر کئی ان کی دکانیں ہیں۔ وہ ایک ہاسپٹل میں کووڈ کی وجہ سے ایڈمٹ کیا گیا، اور وہ تنہا تھے، ان کے خاندان والے رشتہ دار بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آ رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ جب انہیں دیکھا کہ دور سے کوئی پورا اپنا ڈریس جس انداز سے پہن کر ایک سوکھی روٹی اور سبزی اور اس اسٹیل کے پلیٹ کے اندر دور سے دھکا دے کر پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ جب دیکھا ان کا کہنا تھا میں اور یہ روٹی کھاؤں۔ گدک کے اندر
ऑल इंडिया मिली कौंसिल की अहदेदारान, सदर और सेक्रेटरी साहब और कुछ नुमाइंदे काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता जनवरी के अंदर गुलबर्गा में जो इजलास आम हुआ था, टुंगुर के सिलसिले में ये मुख्तसर सी कारगुजारी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी तंजीम कुछ काम लेकर उठती है तो हमारे सारे अरकान जो हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसको इंतहा तक पहुंचाते हैं। हाँ, टीपू सुल्तान के दौर की वहाँ कुछ खबरें हैं, उन खबरों को अचानक सुबह सुबह मिसमार करके वो ख़त्म, जो अलामात थी उन अलामात को ख़त्म करके वहाँ कब्ज़ा जमाने और कुछ। शिमोगा के सिलसिले में मैं समझता हूँ सब में ज़्यादा शिमोगा के सदर मुफ्ती सफ़ीउल्लाह सब मुसलसल राबिते में रहते हैं। कोविड में भी हम लोग मसरूफ़ रहे, क्योंकि 2-3 महीने का जो अरसा था बहुत मुश्किल से गुजरा। उसमें हम लोग जो रिपोर्टर हैं, प्रेस के रिपोर्टर जो टीवी वाले, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से यहाँ 2-3 बार मीटिंगों में आया हूँ, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनी है, उसके अंदर हमें रुकन वगैरह बनाया गया है नहीं बनाया गया मुझे तो उसमें मालूम नहीं। लेकिन ये जो आज का जो इजलास है ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल का जनरल बॉडी इजलास है। तो इजलास उम्मी में जिन चीज़ों का हमने जायज़ा लिया है, सबसे पहले जो है मुल्क की और हमारे सूबे की फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल कि ये सूरत हाल कैसी है, और उसके ऊपर जो है जो अवामिल सामने आ रहे हैं, जो असबाब सामने आ रहे हैं, तो उनका जायज़ा लिया गया। और उसके ज़िम्मन में हमने जो फ़ैसले लिए हैं वो फ़ैसला ये है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो एक प्लेटफार्म है और जो पूरे मुल्क में काम कर रही है, तो इस वक्त फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल जो हमारे स्टेट में ख़ास तौर से बनती जा रही है, तो उसका मुकाबला ऐसा होना चाहिए कि हम उसके जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो उनके बदल में हमारा एक प्रोग्राम हम पेश करें, और उसके साथ साथ जो है हमारी जो आइंदा जो मुस्तक़बिल में जो इस तरह से हुकूमत की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं, तो उनको हम तमाम अपने अरकान को साथ में लेकर और उसके साथ में जो है उस सिलसिले में कुछ काम करें, जैसा कि वकला हैं और उसी तरह से जो है जो कानून जानने वाले हैं, तो उनसे मशवरा करके हम जो भी हो सकता है उसका जो है कोशिश करें कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वो चीज़ जो है सामने आए। तो इस वक्त जो हालात हैं, तो इन हालात के अंदर खुली बात तो ये है कि हुकूमत जो है ना कोई बात करना चाहती है और ना कोई पास, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम एक दबाव बनाएं, एक जो है प्रेशर हम बनाएं, ताकि जो है वो तमाम इन चीज़ों को देखें कि जिसमें इंसानी हुकूक मुतासिर होते हैं और जिससे ख़ास तौर से जो मुल्क का कानून, मुल्क का दस्तूर, जिससे उसके ऊपर कोई चीज़ आ सकती हो, तो ये तमाम चीज़ों को हमें चाहते हैं कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल का पैगाम ये है कि हुकूमत जो भी है वो अवाम के खैर खा होनी चाहिए, अवाम के जो हक़ में फ़ैसला करने चाहिए और अवाम जिससे मुतमईन हो ऐसे कोई जो है इक़दाम करने चाहिए। ये हमारा पैगाम है और ये हम पैगाम एजुकेशन पर जो है ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से आए हुए माहिरीन तालीम ने इस पर इजहार ख़याल किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी बहुत हैं। ख़ास तौर से अक़लियती इदारों के तई खौफज़दगी है, एक मायूसी है। ख़ास तौर से दीनी तालीम के ताल्लुक़ से मदारिस का क़याम, मकातिब का क़याम वग़ैरह वग़ैरह, उसके ताल्लुक़ से उसमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है। तो ये तय हुआ है कि एक हम कमेटी बनाएं रियासती सतह की, तो वो 7 नफरी कमेटी हमने बनाई है और उसका कन्वीनर हमने सैयद सैफुल्लाह साहब को बनाया है। वो मज़ीद तालीम के माहिरीन को लेकर उस पॉलिसी को अज़्ज़अव्वल ता आख़िर सतर सफ़ा पढ़कर
फिर जो है वो क्या तजावीज़ देते हैं, फिर हम उसको जो है रियासत के ज़िम्मेदारान तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मरकज़ी मिली कौंसिल का सहारा लेकर वहाँ दिल्ली तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे, ताकि अक़लियती इदारों पर जो है कोई भी ऐसी बात ना होनी चाहिए कि उनके क़याम में या उनकी कारगुजारी में ख़तरा लाहिक हो। दानिश्वर सिंह स्कॉलर्स और वो जो मास्टरी में एजुकेशन में फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनकी एक निश्चित हम बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और लोगों को समझाएंगे क्या हमको करना है। कोसे मैदान में जो हमारी ज़रूरत है वहाँ पर पहले काम करना है। हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, किसी से मशवरा लेते नहीं हैं, अपने आप फैसला लेते हैं, उनको देख के उसके नुकसान उठा रहे हैं। डिग्री तक पहुंच पा रहे हैं मुस्लिम नौजवान? पहुंच रहे हैं मगर वो जितनी तादाद में जाना है उतना नहीं पहुंच रहे। डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो डिग्री में पढ़ रहे हैं, डिग्री तो माशाल्लाह वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत कम है। ये इससे बरक्स 1990 के बाद बहुत थे। हर कोर्स में एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एमए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इसमें सब भी हमारा परसेंटेज 10 से 12 होता था। अब 1 से 2% में नहीं। इसलिए हमको वहाँ पर काम करना है। अगर आला तालीम में हमारा परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हमारी कौम की तरक्की होती। और हमें मैं जो बताया पीएचडी का मामला, ये 4 साल का पीएचडी का अगर मामला ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है हमारी कौम के लिए। अगर इसे हम पीछे हट गए तो असातिज़ा नहीं रहेंगे, हम दूसरों के पास ही हमारे बच्चे जा पढ़ेंगे। क्योंकि ये पीएचडी करने वाला तो पीएचडी करता है वही पढ़ाएगा बाद में, ठीक है। वो रिसर्च है, इतने साल रिसर्च कम था, अब रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में, अब नई एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह हमको स्टडी करना है, उसे कितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करना है। हो सकता है चंद कामयाबी हैं, क्योंकि तो ज़्यादा खुद बीजेपी है, आरएसएस के लोग भी हैं, वो ड्राफ्ट बनाते हैं, तो कुछ गलतियाँ हैं वहाँ, उसको दुरुस्त करना और जो हमारे लिए बेहतर है उसको हमें अपना लेना। शुक्रिया। साथ हैं सुलेमान खान साहब जो कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मरकज़ी रुकन है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके तासुरात क्या हैं आज की मीटिंग के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मिली काउंसिल का हर साल जो है उमूमी इजलास होता है, मजलिस उमूमी का जनरल बॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का ये आज का इजलास था, जिसमें पूरी रियासत से मिली काउंसिल की जो रियासत ज़िली शाखें हैं उनके नुमाइंदे शरीक हुए थे। मिली काउंसिल के अज़ला में जो है मिली काउंसिल को मजबूत करने के लिए, ताकि मिलत के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, कौम के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, मुल्क के भी जो मसाइल सामने आ रहे हैं, उनमें हम अपना किरदार अदा कर सकें, अपना जो है काम करते हुए उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में अपना हिस्सा पेश कर सकें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल पूरे मुल्क की हर रियासत में भी कायम है, हर रियासत की तमाम अज़ला में भी कायम है, और अज़ला में भी जो है कई अज़ला ऐसे हैं जहाँ ताल्लुक़ा सतह पर भी मिली काउंसिल की शाखें कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की मिली काउंसिल की सालाना इजलास आज हुआ है। हर ज़िले से नुमाइंदे तशरीफ़ लाए थे और इस पर गौर व फिक्र किया गया है कि एक तरफ मिली काउंसिल को अज़ला में मजबूत करें, वहाँ की तश्कील जदीद भी हो, और जो यानी शाखें काम कर रही हैं उनके काम में मज़ीद जो है तरक्की भी हो। दूसरी तरफ जो मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो हुकूक़ इंसानी की पामाली के सिलसिले में हो या अक़लियतों को हुकूमत की तरफ से परेशान किए जाने के मामले में हो, मुख्तलिफ़ क़वानीन लाकर जो है दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करने के इक़दामात जो रियासती हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, उन इक़दामात को रोकने और दस्तूर की बालादस्ती को क़ायम करने के लिए मिली काउंसिल की तरफ से जो कुछ भी जदोजहद हो सकती है उस सिलसिले में आज गौर व फिक्र किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह